السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کی مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ شنگھائی تعاون کونسل کا 24واں اجلاس قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہوا۔ صدر شی جن پنگ نے تنظیم کی پرامن ترقی اور بین الاقوامی تعلقات کی تعمیر پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ شنگھائی اسپرٹ رکن ممالک کے لیے مشترکہ اقدار اور رہنما اصولوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم کے حالیہ سربراہ اجلاس میں چینی صدر شی جن پنگ کی تقریر سے رکن ممالک کے درمیان یکجہتی اور باہمی اعتماد کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کا 24واں دو روزہ اجلاس قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہوا۔ صدر شی جن پنگ نے تنظیم کی پرامن ترقی، اچھی ہمسائیگی کے عزم اور ایک نئی قسم کے بین الاقوامی تعلقات کی تعمیر پر روشنی ڈالی اور کہا کہ شنگھائی اسپرٹ SCO کے رکن ممالک کے لیے مشترکہ اقدار اور رہنما اصولوں کی نمائندگی کرتی ہے اور اس میں باہمی اعتماد، باہمی فائدے، مساوات، مشاورت، متنوع تہذیبوں کا احترام اور مشترکہ ترقی کے حصول کی خصوصیات ہیں۔ قازقستان کے اہم تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف ورلڈ اکنامکس اینڈ پالیٹکس کے ایک سینئر ماہر سلطان زانستوف نے کہا کہ صدر شی جن پنگ نے شنگھائی اسپرٹ کے حوالے سے جو کہا وہ جذبہ ایک نئی قسم کے بین الاقوامی تعلقات کی تعمیر کی وکالت کرتا ہے، خصوصی بلاکس اور محاذ آرائی کی سوچ کو مسترد کرتا ہے اور باہمی احترام کی بنیاد پر تعاون کی تعمیر کے لیے پرعزم رہتا ہے۔ روسی بین الاقوامی امور کونسل کے ڈائریکٹر جنرل آندرے کوٹونوف نے یہ یقین ظاہر کیا کہ چین کی SCO صدارت کے دوران سلامتی اور ترقی اولین ایجنڈے میں ہوں گے۔ ایرانی سیاسی تجزیہ کار محمد رضا منافی نے کثیر جہتی کی بنیاد رکھنے والی SCO کی اقدار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مثال کے طور پر کام کر سکتی ہے کہ اقوام کیسے مل کر تعاون کر سکتی ہیں۔ اسلام آباد میں چین پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر نے پرامن ترقی کے فروغ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ بہت ضروری ہے کہ علاقائی ممالک اکٹھے ہوں۔ SCO ممبران میں بین الاقوامی تعلقات پر مثبت اثر ڈالنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اسلام آباد میں CGTN کے ساتھ ایک انٹرویو میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں چین پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر نے پاکستان اور دیگر SCO اراکین کے درمیان پرامن ترقی کو فروغ دینے کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور تسلیم کیا کہ اس طرح کی کوششیں ان ممالک کو باہمی فوائد پہنچا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ بہت ضروری ہے کہ علاقائی ممالک اکٹھے ہوں اور ایک ساتھ بیٹھیں، اپنے تنازعات اور امن کے آپشنز کے بارے میں بات کریں تو ہی وہ تعاون کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ SCO ممبران چین کی طرف سے تجویز کردہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو تمام رکن ممالک کے درمیان رابطے کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور کثیر الجہتی کے بینر تلے SCO ممبران میں موجود بین الاقوامی تعلقات پر مثبت اثر ڈالنے کی صلاحیت بھی ہے۔ 2001 میں قائم ہونے والے SCO میں اب 10 رکن ممالک، 2 مبصر ممالک اور 14 مکالمے کے شراکت دار ہیں۔ شنگھائی میں 3 روزہ ورلڈ AI کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ AI فار گڈ نے پہلی بار تقریب کی میزبانی کی۔ اجلاس سماجی بھلائی کے لیے AI کو بروئے کار لانے پر مرکوز تھا۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے ٹیلی مواصلات کے ایک عہدیدار نے مصنوعی ذہانت کے دائرے میں ترقی پذیر ممالک کے درمیان صلاحیت سازی کی اہمیت اور ٹیکنالوجی کو اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف میں ضم کرنے میں چین کے کردار پر زور دیا ہے۔ شنگھائی میں 3 روزہ ورلڈ AI کانفرنس 2024 گزشتہ ہفتے اختتام پذیر ہوئی۔ AI فار گڈ نے، جو کہ اقوام متحدہ کے تحت ایک خصوصی ایجنسی انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین کے زیر اہتمام ایک ویبینار سیریز ہے، پہلی بار WAIC میں AI فار گڈ انوویٹ فار امپیکٹ کے عنوان سے ایک تقریب کی میزبانی کی۔ یہ اجلاس سماجی بھلائی کے لیے AI کو بروئے کار لانے پر مرکوز تھا۔ چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ ایک انٹرویو میں ITU کے ٹیلی کمیونیکیشن اسٹینڈرڈائزیشن بیورو کے ڈائریکٹر سیزو اونو نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی ملک کو اس وقت خارج نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ AI تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین ڈیجیٹلی AI ٹیکنالوجیز اور AI کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے، لہٰذا وہ چین کی تجاویز کا بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ چین نے تیار کردہ روبوٹ مستقبل میں انسانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ اوپن سورس جرنل پرپس روبوٹ تازہ ترین اختراعات میں سے ایک ہے۔ 80 کلوگرام وزن والے ہیومنائڈ روبوٹ کو چھنگلانگ کا نام دیا گیا ہے۔
چین میں تیار کیا گیا ایک اہم ہیومنائڈ روبوٹ نہ صرف انسانی صلاحیتوں کی نقل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے بلکہ امید ہے کہ تربیت کے ذریعے مستقبل قریب میں یہ انسانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ اوپن سورس جرنل پرپز روبوٹ تازہ ترین اختراعات میں سے ایک ہے جسے 2024 کی حالیہ ورلڈ اے آئی کانفرنس میں دکھایا گیا تھا۔ 1.85 میٹر اونچے اور 80 کلو گرام وزن والے ہیومنائڈ روبوٹ کو چھانگ لانگ کہا جاتا ہے، جس کا چینی زبان میں مطلب آز ایور ڈریگن ہے۔ چھانگ لانگ میں نازک انگلیوں سے لے کر کونوں اور کمر تک کل 43 انتہائی لچکدار جوڑ ہیں جو اس کی نقل و حرکت کو قابل ذکر بناتے ہیں۔ روبوٹ نہ صرف اپنے پیروں پر چلتا ہے بلکہ آسانی سے ڈھلوانوں اور رکاوٹوں کو عبور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی غیر معمولی طور پر تیز رفتار ہوتے ہیں۔ روبوٹ 2 سینٹی میٹر تک کی چھوٹی چیزوں کو درست طریقے سے پکڑ سکتا ہے اور یہاں تک کہ چاول کی پلیٹ میں تل کے بیج بھی نکال سکتا ہے۔ یہ روبوٹ شنگھائی کے پیوڈونگ نیو ایریا میں نیشنل اینڈ لوکل کو بلٹ ہیومنائڈ روبوٹکس انوویشن سینٹر نے تیار کیا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا لائف سائز اوپن سورس ہیومنائڈ روبوٹ ہے۔ اس میں دماغ، حسی آگاہی اور ایک مکمل اعضاء کا نظام ہے۔ چائنا ایٹامک انرجی اتھارٹی کا آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بڑا اقدام سامنے آ گیا۔ چین نے جوہری توانائی کے حل کی وسیع رینج پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ چین کا تیار کردہ ہوالونگ 1 کامیابی کے ساتھ پاکستان کو بھی برآمد کیا گیا۔ چائنا ایٹامک انرجی اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ چین آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جوہری توانائی کے حل کی ایک وسیع رینج پیش کرے گا۔ یہ بیان بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی میں چین کی رکنیت کی 40ویں سالگرہ کی یاد میں تقریبات کے ایک سلسلے کے دوران دیا گیا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی میں چین کے نائب مستقل نمائندے اور IAEA میں چین کے مستقل مشن کے وزیر کانسلر لیو گونگوائی نے کہا کہ چین کا تیار کردہ ہوالونگ 1 کامیابی کے ساتھ پاکستان کو برآمد کیا گیا ہے اور چین کے جوہری سلامتی کے ساز و سامان کو دنیا بھر کے 100 سے زیادہ ممالک میں کسٹم حکام سرحدی معائنوں میں بڑے پیمانے پر استعمال کر رہے ہیں۔ CAEA نے کہا کہ عالمی آب و ہوا کی تبدیلی کے پس منظر میں چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹر ٹیکنالوجی نے ترقی پذیر ممالک کی نمایاں توجہ حاصل کی ہے۔ دی لانگونگ صوبہ ہینان میں تیار کیا جانے والا ایک چھوٹا ماڈیولر ری ایکٹر ہے جو دنیا کا پہلا زمین پر مبنی چھوٹا ماڈیولر پریشرائزڈ واٹر ری ایکٹر ہے۔ یہ دنیا کے پہلے تجارتی قابل عمل زمین پر مبنی چھوٹے ری ایکٹر کے لیے ایک پروٹوٹائپ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ چائنا نیوکلیئر انرجی ایسوسی ایشن کے ذریعے شائع کردہ چائنا نیوکلیئر انرجی ڈیولپمنٹ رپورٹ 2024 کے مطابق 2023 کے آخر تک چین کے پاس 26 جوہری توانائی کے یونٹ زیر تعمیر تھے جن کی کل نصب شدہ صلاحیت 30.3 ملین کلو واٹ تھی، جس نے جوہری توانائی میں دنیا کے رہنما کی حیثیت کو برقرار رکھا۔ شنگھائی نے موسم گرما کے بین الاقوامی کھپت کے سیزن کا آغاز کر دیا۔ شنگھائی سمر انٹرنیشنل کنزمپشن سیزن میں 7 فلیگ شپ ایونٹس شامل ہیں۔ شنگھائی میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں نمایاں اضافے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ شنگھائی نے گزشتہ ہفتے باضابطہ طور پر موسم گرما کے بین الاقوامی کھپت کے سیزن کا آغاز کیا۔ شنگھائی سمر انٹرنیشنل کنزمپشن سیزن میں 7 فلیگ شپ ایونٹس ہیں جن میں پیرامڈ کی چوٹی، قدیم مصری تہذیب کی نمائش، سٹی واک، پرو شنگھائی اربن ایکسپیرینس سیزن اور پہلا شنگھائی انٹرنیشنل لائٹ فیسٹیول شامل ہے۔ اس سیزن میں شنگھائی انٹرنیشنل کروز فیسٹیول بھی شامل ہے جو 2 اگست کو روانہ ہوگا۔ سال کے آغاز سے شنگھائی کی کروز بندرگاہ نے 126 ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ کروز جہازوں میں مجموعی طور پر 6,30,000 مسافروں نے سفر کیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار نے سال کے پہلے 6 ماہ میں شنگھائی میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں نمایاں اضافے کا انکشاف کیا ہے۔ جنوری سے جون تک شنگھائی نے اپنی بندرگاہ کے ذریعے 2.035 ملین بین الاقوامی سیاحوں کی آمد درج کی، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 2.8 گنا اضافہ ہے۔ مینوفیکچرنگ NEV کی صنعت کو فروغ دے رہی ہے۔ لیانگ جیانگ سپر فیکٹری میں NEV لاگت میں کمی اور معیار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں انٹیلیجنٹ فیکٹری 24 گھنٹے مؤثر مگر خاموشی سے کام کرتی ہے۔ سمارٹ مینوفیکچرنگ جنوب مغربی چین کے چونگقنگ کی میونسپلٹی میں NEV کی صنعت کو فروغ دے رہی ہے اور لاگت میں کمی اور معیار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر کے لیانگجانگ نیو ایریا میں واقع ایک NEV سپر فیکٹری میں 1000 سے زیادہ ذہین آلات اور 3000 روبوٹ پیچیدہ کاموں کو انجام دینے کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے چل رہے ہیں۔ روایتی فیکٹری کے برعکس یہ انٹیلیجنٹ فیکٹری 24 گھنٹے مؤثر طریقے سے خاموشی سے کام کرتی ہے۔ فیکٹری کی اسمبلی ورکشاپ نے آٹومیشن کی 52% شرح حاصل کی ہے جو صنعت کی اوسط کو دگنا کرنے سے زیادہ ہے۔
फैक्ट्री में मसनूई जहानत से चलने वाला मुआयने का निज़ाम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान 300 से ज़्यादा अहम अमल की निगरानी करता है और पूरी पैदावार में मयार और दुरुस्तगी की जमानत देता है। गाड़ी के चेसिस और बॉडी को जोड़ने वाले 162 बोल्ट की तंसीब करता है, जो मामूली गलतियों का भी पता लगाता है और रिपोर्ट करता है। फैक्ट्री ने दुनिया की पहली 9800 टन की सुपर इंटेलिजेंट डाई कास्टिंग मशीन मुतारिफ करवाई है, जो 87 अज्जा को जिस्म के एक हिस्से में जम कर सकती है। इस जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत गाड़ी के 212 पुर्जों और 1440 वेल्डिंग पॉइंट्स को कम करने, वजन को कम करने और कारकर्दगी को बढ़ाने की सलाहियत में इजाफा हुआ है। चोंकिंग ने इस साल जनवरी से मई तक 9,97,000 गाड़ियां तैयार की और चीन का ऑटो कैपिटल होने का अपना खिताब दोबारा हासिल किया। इस अरसे के दौरान NEV की पैदावार 144.1% बढ़कर 3,06,000 यूनिट्स हो गई है। गोंगबी कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकारी अदादोशुमार जारी कर दिए। इन अदादोशुमार के मुताबिक हांगकांग की निजी कार गुजरगाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। अब निजी कार्स बगैर कोटा हांगकांग और ग्वांगडोंग के दरमियान सफर कर सकती हैं। जनूबी चीन के सूबे गोंगडोंग में गोंगबी कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन के जारी करदा सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक हांगकांग जोहाई मकाओ ब्रिज पर जोहाई पोर्ट के जरिए मेनलैंड में 1 जुलाई 2023 को मेनलैंड की हांगकांग गाड़ियों के लिए शिमाल की तरफ सफर स्कीम के निफाज के बाद से हांगकांग के निजी कार गुजरगाहों की तादाद गुज़श्ता साल के दौरान 1 मिलियन की अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इस स्कीम में अहल निजी कारों को बाकायदा कोटा हासिल करने की ज़रूरत के बगैर HZMB के जरिए हांगकांग और ग्वांगडोंग के दरमियान सफ़र करने की इजाज़त है। इस स्कीम के निफाज के बाद से हांगकांग में रजिस्टर्ड निजी कारों की तादाद में महाना 58.17% इजाफा हुआ है। 2023 में पॉलिसी के निफाज के बाद से बंदरगाह पर यकतरफा मुसाफिर गाड़ियों की मंजूरी में 1.5 गुना और रिस्क मैनेजमेंट क्लियरेंस की कारकर्दगी में 80% इजाफा हुआ है। शीजांग खुद इख्तियार इलाके ने मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हासिल की है। खित्ते ने मरबूत कसीर जहती नकलो हमल का नेटवर्क भी कायम किया। जून 2021 में शीजांग में बड़की रेलवे को ट्रैफिक के लिए खोला गया था। जनूब मगरबी चीन के शीजांग खुद इख्तियार इलाके ने 2012 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हासिल की है। खित्ते ने बुनियादी तौर पर एक मरबूत कसीर जहती नकलो हमल का नेटवर्क कायम किया है, जो इसे चीन के दूसरे इलाकों से जोड़ता है। जून 2021 में शीजांग में बरकी रेलवे को ट्रैफिक के लिए खोला गया, जो इलाकाई दारुल हुकूमत लिहासा को निंगची शहर से जोड़ता है, जिससे सतह मुर्तफा पर चलने वाली बुलेट ट्रेनों का बाज़ाब्ता आगाज हुआ। सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड रेलवे 445 किलोमीटर की लंबाई और 160 किलोमीटर फी घंटा की डिज़ाइन करदा रफ्तार का हामिल है। गुज़श्ता माह शीजांग के दूसरे सबसे बड़े शहर लिहासा और शिगात्से को जोड़ने वाले हाईवे प्रोजेक्ट का 167 किलोमीटर का हिस्सा बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक के लिए खोला गया। शीजांग ने बतदरीज तवानाई की फराहमी का एक साफ और जामे निज़ाम बनाया है। पावर ग्रिड की तामीर में बड़ी पेशरफ्त हुई है। 2023 के आखिर तक शीजांग में मजमूई तौर पर 24.14 मिलियन किलोवाट बिजली पैदा करने की सलाहियत थी, जो 95% से ज्यादा साफ तवानाई के ज़राए पर मुश्तमिल है। इस खित्ते में 2012 से सयाहत में भी इजाफा हुआ है। 2023 में यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के 55.17 मिलियन दौरे हुए, जो साल बसाल 83.7% बढ़े और यूं कुल सयाहत की आमदनी 65.1 बिलियन युआन यानी तकरीबन 9 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंची, जो साल बसाल 60% का इजाफा है। तालीम में आला मयार की तरक्की देखी गई है, जिसमें 15 साल की मुफ्त स्कूलिंग और जदीद तालीमी निज़ाम शामिल है। चरवाहों और किसानों के खानदानों के तलबा अब हुकूमत की तरफ से सब्सिडी के साथ मुफ्त खाना, मुफ्त क़याम और स्कूल में मुफ्त ट्यूशन से लुत्फानंदोज होते हैं। शीजांग ने काबिल ज़िक्र माहौलियाती तरक्की भी देखी है। खित्ते में कौमी ग्रेड 1 के तहफ़्फ़ुज़ के तहत जंगली जानवरों की 65 इक़साम हैं, जैसे बर्फानी चीते, यूनियन गोल्डन सिल्व नाक वाले बंदर, जंगली याक, स्याह गर्दन वाले क्रेन और हिरन। दिल की बीमारियों में मुब्तला 18 बच्चों का हेलोंग जियांग के अस्पताल में इलाज हुआ। चीन रेड क्रॉस फाउंडेशन की बदौलत बच्चों की सेहत अब बेहतर है। दिल की बीमारियों में मुब्तला सबसे बड़े बच्चे की उम्र 14 साल थी। शीजांग खुद इख्तियार इलाके से पैदाइशी तौर पर दिल की बीमारियों में मुब्तला कुल 18 बच्चों ने हाल ही में शिमाल मशरिकी चीन के सूबे हेलोंगजियांग के एक अस्पताल में सर्जरी समेत मुफ्त तिब्बी इलाज कराया है।
چین ریڈ کراس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بین الاقوامی پروگرام کی بدولت ان کی صحت اب بہتر ہے۔ صوبے کے مڈجنگجیانگ شہر کے کارڈیو ویسکولر ہسپتال میں داخل 6 بچوں کی سالگرہ کے موقع پر ہسپتال کے عملے نے خاص طور پر ان کے لیے سالگرہ کی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ تمام 18 بچے اس موقع پر موجود تھے۔ 18 بچوں کے مریضوں میں سب سے بڑا 14 سال کا تھا اور سب سے چھوٹا صرف 1 سال اور 8 ماہ کا۔ یہ بچے ابتدا میں کافی حد تک خوف کا شکار تھے، تاہم اب اپنی بہتر زندگی کے خواب کے ساتھ پر امید ہیں۔ ہیلونگ جیانگ میں واقع کیکسنگ فارم بغیر پائلٹ کی زراعت میں پیش ہے۔ فارم نے 2016 میں انٹیلیجنٹ ایگریکلچر کی طرف سفر شروع کیا۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت قابل استعمال زمین کی شرح اب بڑھ کے 95% ہو گئی ہے۔ شمال مشرقی چین کے صوبے ہیلونگ جیانگ میں واقع کیکسنگ فارم بغیر پائلٹ کی زراعت میں پیش ہے، جس نے سالوں کی جدت طرازی کے ذریعے کارکردگی اور پیداوار میں نمایاں فوائد حاصل کرنے کے لیے ابتدائی ٹیکنالوجی کی رکاوٹوں پر قابو پا لیا ہے۔ فارم نے 2016 میں انٹرنیٹ آف تھنگز کو اپناتے ہوئے انٹیلیجنٹ ایگریکلچر کی طرف سفر شروع کیا، تاہم ابتدائی رکاوٹیں جلد ہی سامنے آئیں، جن میں پلیٹ فارم کے درمیان انٹرفیس کا متحد نہ ہونا اور ڈیٹا کو آپس میں جوڑا نہ جا سکتا تھا۔ 2018 کے آخر میں کیکسنگ فارم متحد سرکاری انٹرپرائز مینجمنٹ سے کارپوریٹ ماڈل میں تبدیل ہوا۔ اس کے بعد پیداوار کے ہر عمل میں تیزی سے اصلاحات ہوئیں، جن میں ڈیجیٹل کلاؤڈ پلیٹ فارم کا قیام اور بغیر پائلٹ ٹرانسپلانٹرز سمیت زرعی مشینری کو اپ گریڈ کرنا شامل ہے۔ پہلے زمین کے استعمال کی شرح 91% تھی، اب یہ بڑھ کر 95.94% ہو گئی ہے۔ فارم کے زرعی پیداوار کے محکمے کے تحت چاول کے دفتر کے مطابق مجموعی لاگت کی بچت اور کارکردگی کے فوائد تقریباً 153 یوان یعنی تقریباً $21 فی منہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ چین کا صوبہ یونان ملک میں کافی کی پیداوار کا سب سے بڑا علاقہ ہے۔ جدید پروڈکشن ٹیکنالوجیز نے مقامی کافی کے معیار کو بہتر بنایا ہے۔ حالیہ برسوں میں کافی کی صنعت میں بھی تیزی سے توسیع ہوئی ہے۔ جنوب مغربی چین کا صوبہ یونان ملک میں کافی کی پیداوار کا سب سے بڑا علاقہ ہے۔ جدید پروڈکشن ٹیکنالوجیز اور پروسیسنگ مشینری متعارف کروا کر صوبے نے مقامی کافی کے معیار کو بہتر بنایا ہے اور حالیہ برسوں میں اس صنعت میں تیزی سے توسیع ہوئی ہے۔ 2022 میں یونان کا کافی کی کاشت کا کل رقبہ تقریباً 7.6 ملین ہیکٹر تھا اور اس کی خام کافی کی سالانہ پیداوار نے 1,40,000 ٹن سے تجاوز کیا، جس کی کل پیداواری قیمت 37 بلین یوان سے زیادہ ہے۔ مقامی حکام نے کاشتکاروں کے حالات کو بہتر بنانے اور صنعت کی پائیدار اور صحت مند ترقی کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی پالیسیوں اور اقدامات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جن میں نامیاتی سرٹیفیکیشن اور گرین سرٹیفیکیشن کے ساتھ سبسڈی کی فراہمی اور ان لوگوں کی مدد بھی ہے جو اعلیٰ معیار کی اقسام کی کاشت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 6 بڑی پالیسیاں اور اقدامات متعارف کروائے گئے ہیں، جن کا مقصد پریمیم کافی کی پیداوار کی شرح کو فروغ دینا اور پروسیسنگ کی سطح کو بڑھانا ہے۔ موسم گرما کی تعطیلات میں سیاحت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایوو میں فریج میگنیٹس کی مانگ میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ متعلقہ آرڈرز میں 230% سالانہ اضافہ ہوا ہے۔ موسم گرما کی تعطیلات میں سیاحت میں اضافہ اور سوینئرز کے آرڈرز میں تیزی دیکھی گئی ہے، خاص طور پر ایوو میں فریج میگنیٹس کی مانگ میں۔ مارکیٹ کی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 1 مارچ سے 1 جولائی تک فریج میگنیٹس کی آن لائن تلاش میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ متعلقہ آرڈرز میں سال بسال تقریباً 230% اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تجارتی حجم میں 78% اضافہ ہوا ہے۔ چین کے صوبہ یونان میں نوجوان کے لیے سمر کیمپ کا انعقاد ہوا۔ امریکی اساتذہ اور طلباء کی شرکت سے ثقافتی تبادلوں کو بھی مزید فروغ ملا۔ فلائنگ ٹائیگرز رضاکار فضائیہ کی تاریخی میراث پر مبنی کیمپ جمعے کو اختتام پذیر ہوا۔ جنوب مغربی چین کے صوبے یونان میں نوجوانوں کے سمر کیمپ سے 70 امریکی اساتذہ اور طلباء کے ساتھ امریکہ چین دوستی اور ثقافتی تبادلوں میں مزید تحریک کو فروغ ملا ہے۔ فلائنگ ٹائیگرز رضاکار فضائیہ کی تاریخی میراث پر مبنی یہ کیمپ گزشتہ ہفتے اختتام پذیر ہوا۔ فلائنگ ٹائیگرز، جسے باضابطہ طور پر چینی فضائیہ کے امریکی رضاکار گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے، 1941 میں US جنرل کلیئر لی چارلٹ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران چین پر جاپانی حملے کی مخالفت میں مدد کے لیے تشکیل دیا تھا۔ 8 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد فلائنگ ٹائیگرز کی بہادری کی کہانیاں چین اور امریکہ دونوں میں نسل در نسل منتقل کی گئی ہیں، جس میں باہمی دوستی پھلتی پھولتی رہی ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے GNN۔
वेलकम बैक। सुबह ग्वांगचू में वाक़या जोंगजियांग काउंटी शदीद गुर्बत ज़दा इलाके से सियाहती मकाम में तब्दील हो गई। सियाहती मकाम मकामी बच्चों को ख्वाबों की तकमील के लिए नए मौक़े फराहम करने लगा। तब्दीली जुज़वी तौर पर चीन की विलेज सुपर लीग की वजह से इलाके में आई है। चीन के जनूब मगरबी सूबा गोयचो में वाक़ रुंगजिंग काउंटी शदीद गुर्बत ज़दा इलाके से आज एक ऐसे सियाहती मुकाम में तब्दील हो चुकी है जो यहाँ के बच्चों को अपने ख्वाबों को पूरा करने के नए मौक़े फराहम कर रही है। ये तब्दीली जुज़वी तौर पर चीन की विलेज सुपर लीग की वजह से है, जिसका आगाज़ पिछले साल रुंगजिंग काउंटी में हुआ था और इसने तेज़ी से चीन और बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत हासिल की है। टूर्नामेंट ने खित्ते में सियाहत को नुमाया तौर पर फ़रोग़ दिया है। रवां साल मई से जुलाई तक रुंगजिंग काउंटी की 20 टीमें हर जुम्मे, हफ्ता और इतवार को विलेज सुपर लीग टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इन तकरीबात में बाईवांग वुडन ड्रम डांस पेश किया जाता है, जो कौमी गैर मादी सकाफ़ती वर्सा है जो मुकामी लोगों के जोशो खरोश और उम्मीद को जाहिर करता है। लूंग जानथाओ जैसे ढोल रक्स करने वालों को एक दहाई कबल गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मोन माउंटेन इलाके के दूर दराज बाईवांग गांव से रुंगजिंग काउंटी मुंतकिल किया गया था। लांग सिर्फ चंद माह का था जब उनके वालिदैन 12 साल पहले काम करने के लिए दूसरे सूबे में चले गए थे। लोंग की सबसे बड़ी बहन लोंग चाओफिंग अब ग्योयांग शहर के एक वोकेशनल कॉलेज में बिग डाटा और अकाउंटिंग की डिग्री हासिल कर रही हैं, जो उनके बचपन के खौफनाक तंग स्कूल हाउस के बिल्कुल बरक्स है। वो कहती है कि मैं एक ऐसी नौकरी तलाश करना चाहती हूँ जिससे मैं लुत्फ़अंदोज़ हो सकूँ और फिर अपने छोटे भाई की देखभाल करना चाहती हूँ जैसा कि मेरे वालिद ने किया था। वालिद साहब ने हमें सिखाया है कि हमें ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, सख्त मेहनत करनी चाहिए और ख़ानदान की देखभाल भी करनी चाहिए। उन्होंने हमारे लिए एक तवील अरसे तक सख्त मेहनत की है। अब वक्त आ चुका है कि हम उनकी देखभाल करें। बाईवांग में लोंग चाओफिंग की साबिक हमजमात फान जनमी इस वक्त एक ज़रूरी पेशा वराना कॉलेज में ज़ेर तालीम हैं। यहाँ रजिस्टर्ड गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों को सालाना ट्यूशन छूट में 3500 युआन, कौमी तलबा की इमदाद में 2500 युआन और गुर्बत के खात्मे के फ़ंड से इजाफी 1000 युआन मिलते हैं। खान कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आई है। मैं अच्छा खा सकती हूँ, अच्छा पहन सकती हूँ और मेरी तदरीसी ज़िंदगी बहुत खुश और मुतमईन है। गांव के स्कूल के साबिक प्रिंसिपल शेचिंग हुआ अब रुंगजिंग काउंटी में रियाजी के उस्ताद हैं। दूरदराज पहाड़ी इलाके से कस्बे में मुंतकली का मुशाहिदा करने के बाद उन्होंने बच्चों के सीखने के माहौल में ड्रामाई बेहतरी देखी है। वो कहते हैं कि बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं। ये दो मुख्तलिफ दुनियाओं की तरह है। इससे पहले स्कूल का हॉस्टल वाकई मुकम्मल तौर पर ख़राब हालत में था। इस वक्त हमारे पास कम असातिज़ा थे और बच्चे वो नहीं सीख पाते थे जो वो चाहते थे। लेकिन अब देखें, हमारे पास 100 से ज़ायद असातिज़ा हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल, मौसीकी वो जो चाहें सीख सकते हैं। सन 2012 से अब तक मोन माउंटेन इलाके के मरकज़ से 15,000 से ज़ायद अफराद इस शहर में मुंतकिल हो चुके हैं। नकल मकानी करने वाले रिहायशियों के लिए बेहतर म्यार ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए मुकामी हुकूमत ने आस पास अस्पताल, स्कूल, सनती पार्क और तफरीही सहूलियात तामीर की हैं। 2015 के बाद से गोयचो ने मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए सबसे बड़े पैमाने पर आबादी की मुंतकली की है। मजमूई तौर पर 1.92 मिलियन अफराद दूर दराज पहाड़ी इलाकों से ज़्यादा काबिल रिहाइश कस्बों और शहरों में मुंतकिल हो चुके हैं, जिससे बुनियादी तौर पर गुर्बत का मसला हल हो चुका है, जो तवील अरसे से गोयचो के लिए परेशानी का सबब था। रवायती चाइनीज़ मेडिसन चीन की शानदार रवायती सकाफत में से एक है। रवायती चाइनीज़ मेडिसन को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूलियत मिली है। पाकिस्तान में भी बहुत से पौधे मौजूद हैं जिन्हें बतौर अद्वियात इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन चीन की शानदार रिवायती सकाफत में से एक है। अब ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूलियत मिली है। आज हम इस्लामाबाद में प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक से मिले और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के शोबे में चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन के हवाले से जानेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रिवायती चीनी टीम यानी TCM मेडिसिनल प्लांट रिसर्च टीम के रहनुमा हैं। उन्होंने कई सालों तक
चंगदू, बेइजिंग और चीन के दीगर मकामात पर चीनी रिवायती द्वीप के मेडिसिनल प्लांट का मुतालिया किया है। TCM के शोबे में चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को भरपूर फरोग़ देने के लिए अपनी खिदमत के बदौलत दमनाए इम्तियाज से नवाजा भी किया। TCM अब डॉक्टर मुश्ताक का पेशा और जज्बा बन गया है। हम चाइना के साथ मिलकर ट्रेडिशनल चाइनीज़ हर्ब्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पाकिस्तान में, और ये वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ हर्ब्स हैं जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी पाए जाते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जियोग्राफी, जिसकी लैंडस्केपिंग और जिसका जो एल्टीट्यूडनल डाइवर्सिटी है, उसमें ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं जिनको हम अद्वियाती पौधे कहते हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं जो मेडिसन में इस्तेमाल होते हैं, वो चाइना में ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन कहलाते हैं। तो ऐसे हमने तकरीबन 500 से 600 मेडिसन हर्ब्स को आइडेंटिफाइड किया है जो कि पाकिस्तान में एज ए हर्बल रेसिपीज़ यूज़ होते हैं बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। उन इलाकों में इनका इस्तेमाल ज़्यादा है जहाँ लोगों के पास मॉडर्न हॉस्पिटल्स नहीं है, मॉडर्न डिस्पेंसरीज नहीं है, लेकिन स्टिल पीपल दे यूज़ दीज मेडिसिनल प्लांट। लेकिन अब 2000 के बाद यानी 2020 के बाद, कोविड के बाद लोगों का ट्रेंड ज़्यादा हो गया है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को इस्तेमाल करने का। प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद की क़यादत में उनकी टीम ने TCM रिसर्च करने में कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमने कुछ हर्बल टीज़ ऐसी डेवलप की हैं जो कि हमारे ऑलरेडी ट्रेडिशनल चाइनीज़ हर्ब्स यहाँ पाई जाती हैं। उनसे नेचुरल घरों में आप हर्ब से आप हर्बल टी तैयार करते हैं, वो आपके लिए नेचुरल वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल होती है। इस तरह से एक पौधा है जिसको हम कहते हैं पायोनिया एमोडाई, ये उसका साइंसी नाम है, उर्दू में उसको मामेह कहते हैं। उससे हमने एपिलेप्सी की एक ड्रग बनाई है। जिन लोगों को एपिलेप्सी हो जाती है तो जो ड्रग है वो चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज, चंगदू इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तावन से इस वक्त वो पैटेंट ड्रग है पूरे चाइना में यूज़ हो रही है। तो अब पाकिस्तान में हम इंडस्ट्रीज़ को बता रहे हैं कि आप ही वो ड्रग बनाएं पाकिस्तान में ताकि ये सर्कुलेट की जाए लोगों तक। एक बात, दूसरी बात ये है कि हमने एक और प्लांट है जिसको हम कहते हैं वर्जीनिया सिलिएटा, उसको बटपे कहते हैं पाकिस्तान में उर्दू में या जो भी ये लोकल लैंग्वेज है। उससे हमने स्किन की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिन लोगों को स्किन के इश्यूज होते हैं, स्किन बर्न हो जाता है, स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए हमने स्किन की एक नेचुरल कॉस्मेटिक्स डेवलप की है जो कि फीमेल ज़्यादा यूज़ करती हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 3000 रिवायती दवाओं की जड़ी बूटियाँ हैं, जिनमें से अक्सर चीन में भी पाई जाती हैं। इसीलिए मुश्ताक का ख्याल है कि दोनों ममालिक के दरमियान दावन के इम्कानात वसीह हैं और इससे लोगों को ठोस फवाइद भी हासिल हो सकते हैं। हमारी रिसर्च बॉटम अप अप्रोच है कि हम नीचे से चलते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में 70 से 80% लोग गाँव में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, दरियाओं के किनारे रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, तो उनके पास महंगी दवाइयाँ लेने के पैसे नहीं होते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए हमने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया है ताकि उन लोगों को उनके अपनी जगह पर नेचर से ही उनको मेडिसिन मिल जाए। पौधों को उन इलाकों से कलेक्ट करते हैं, उन हर्ब्स को हम इकट्ठा करते हैं, फिर उनको हम लेब में ले आते हैं। तो हम देखते हैं कि ये पौधा अगर हार्ट के लिए यूज़ हो रहा है, डायबिटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है या कैंसर के लिए यूज़ है, तो इस पौधे के अंदर कौन कौन सी ऐसे कंपाउंड्स हैं। तो हम लेब में उन कंपाउंड्स को आइसोलेट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और देन उससे हम नेचुरल ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट करते हैं। तो हमारी लेब में 3 तरह की अप्रोचेज़ है। एथनोफार्माकोलॉजी यानी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़, डेवलपमेंटल स्टेज जिसमें हम बायोलॉजिकल और फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करते हैं और फिर उससे हम मेडिसिन बनाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक की टीम में बहुत से नौजवान मुहक्किकीन भी हैं जो पाकिस्तान और चीन में TCM बूटियों से मुतालिक तहकीक में मसरूफ़ हैं। ये नौजवान पाकिस्तान में TCM की तरक्की के लिए पुरुउम्मीद हैं। हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस पर काम करते हैं। रिसेंटली जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो है एलजी यूज्ड एज अ कैंसर ट्रीटमेंट। हम एलजी की डिफरेंट स्पीशीज़ को हम लोकल एरिया से हम उसको लेते हैं, फिर उसको प्योर करके हम उसके अंदर से डिफरेंट कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उन कंपाउंड से हम डिफरेंट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। हमने जो स्पेसिफिकली जो टारगेट किया है, हमने ब्रेस्ट कैंसर को टारगेट किया है, उसके डिफरेंट सेल लाइन्स के ऊपर हमने डिफरेंट कंपाउंड्स को अप्लाई किया है, एलजी के डिफरेंट कंपाउंड्स को।
चीन में पैदा होने वाली कदीम रिवायती अद्वियात अब अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान में जिंदा हो रही है। हम चीन और पाकिस्तान के दरमियान TCM और दीगर शोबे में दावन के मुंतज़िर हैं ताकि दोनों ममालिक के अवाम को मज़ीद फ़ायदे हासिल हों। बोई कौमियत के लोग फूलों और पत्तियों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। वांग लियांग होंग को बोई कौमियत के मलबूसात के वारिस के तौर पर जाना जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि इससे मेरा रिश्ता कब शुरू हुआ था, तो दर हकीकत इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। जब आप आसपास के लोगों को ये बनाते हुए देखते हैं तो आप उनसे मुतासिर होते हैं और लाशऊरी तौर पर इसे सीख लेंगे। हम बोई कौमियत के लोग फूलों और तितलियों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो बेहद खूबसूरत हैं। चूंकि कढ़ाई करने वाली खवातीन को पेंटिंग नहीं आती, इसलिए वो कढ़ाई के जरिए इस खूबसूरत मंजर को महफूज रखना चाहती हैं। मैं बोई कौमियत के मलबूसात का वारिस लियोंग वोंग हूँ। नेटिजन मुझे साल 1995 के बाद पैदा होने वाला कढ़ाई करने वाला लियो पुकारते हैं। पहले ऐसी कोई सड़क नहीं थी, हमें पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना पड़ता था और वो सामने जो पहाड़ों का एक सिलसिला नजर आ रहा है, वो पूरा सिलसिला पार करने के बाद ही दादी के घर पहुंचा करते थे और उनके घर पहुंचने में काफी वक्त लगता था। हर साल मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं दादी के घर जाता हूँ, मवेशी चराता हूँ या उनके साथ खेती बाड़ी करता हूँ। वो खेतों में जाना चाहते हैं तो जाने दो उन्हें। मैं ले लेती हूँ। ये बहुत भारी है। भारी है, उठा पाओगी इसे? आप बेफिक्र हो जाइए। बोई कढ़ाई हमारी कौम की खुसूसियात का ध्यान से, वाज़ेह इज़हार गिर मत जाना। सो हाथों से हम एक ही फूल को 100 तरीकों से गाड़ सकते हैं। दादी आज पहाड़ों पर गईं और उन्होंने काफी कुछ इकट्ठा कर लिया है। मुझे नेचर से बहुत मोहब्बत है। जरा देखो इसे। जब मैं मवेशियों को चराने के दौरान वक्फा लेता हूँ तो मैं भी कढ़ाई करता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये रंगारंग है। दिन का काम खत्म होने के बाद वो रात को अपने हाथ धोकर मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में कढ़ाई करने लगती हैं। बच्चे रात को कहाँ खेलें, इसलिए वो रात को बैठकर उन्हें कढ़ाई करते हुए देखते हैं। मेरा घर गोएन लैंग हुई और मयाओ कौमियतों की खुद इख्तियार काउंटी के कस्बे शोंगोइन के गांव चोंगबा में है। मैं यहीं पला बड़ा हूँ। और ये मेरी वालिदा है। मेरी वालिदा ने ये कढ़ाई उस वक्त बनाई थी जब वो छोटी थी, तकरीबन 10 साल की थी। उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितनी हुनरमंद है। मैं कहता हूं कि आपकी महारतें बेहतरीन हैं। आपके फनपारों को कहीं भी दिखाया जाए तो वो बेहतरीन है। यूनिवर्सिटी में मेरी एक जूनियर तालिबा ने मुझसे बुटीक का एक पीस बनवाने को कहा था। जब उन्हें वो मिला तो उसे देखकर वो बहुत खुश और मुतमईन थी और कहने लगी कि ये किस कदर खूबसूरत है। इस चक्कर को तह तक पहुंचने देना है, फिर रंग गाढ़ा हो जाएगा और ये रंगाई का बेहतरीन सयाल है। यूनिवर्सिटी के तीसरे साल तक मेरे वालिदैन कहते थे कि अब तुम नौकरी तलाश कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं यही काम करना चाहता हूँ। उस वक्त वो इस बात को नहीं समझते थे। कुछ लोग कहते हैं कि तुम लड़के हो, तुम कढ़ाई क्यों कर रहे हो। इस तरह के सवालात मैं संभाल कर रखता हूँ। जब मेरी हिम्मत जवाब देने लगेगी तो मैं दोबारा सुनूंगा।
हेलो दोस्तों, शाम बखैर और लियो के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में खुशामदीद। आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार ये कढ़ाई का एक मुकम्मल मखलूत है। मैं सिर्फ उनको मसरूफ रखना चाहता हूँ, रोजाना एक नए दोस्त से मिलता हूँ, फिर उनसे मजीद दोस्त बनेंगे। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं कि वो मुझे याद रखें या उन्हें बताया जाए कि लियो किस किस्म का लड़का है या वो एक कढ़ाई करने वाला है। मुझे सिर्फ उम्मीद है कि मैं जिन फूलों की कढ़ाई करता हूँ उनके जरिए वो बोई लोगों की सकाफत के बारे में आसानी से जान सकेंगे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीन के अजीम फिलोसफर कन्फ्यूशियस का आबाई शहर चोफू है। कन्फ्यूशियस टेम्पल तारीखी तबार से निहायत अहमियत का हामिल है। यहाँ 2500 साल कबल कन्फ्यूशियस रहा करते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अब्बासी और ये है चीन के अजीम फ़िलासफ़र कन्फ्यूशियस का आबाई शहर चूफू। उनका एक बड़ा अच्छा कॉल है कि अगर आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए दूर से आएँ तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। हम भी आज उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और कल होने जा रहा है जनाब 10th निशान फोरम फॉर इंटरनेशनल सिविलाइजेशंस, वो भी हम अटेंड करेंगे। लेकिन अभी मेरे पीछे है जनाब कन्फ्यूशियस टेम्पल। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। ये बड़ी तारीखी जगह, यहाँ पे तकरीबन 2500 साल पहले कन्फ्यूशियस रहा करते थे और उसके बाद मुख्तलिफ अदवार जो गुजरे हैं उसमें उनकी याद के लिए ये स्ट्रक्चर तामीर किए गए। ये जो आप स्ट्रक्चर्स अभी देख रहे हैं आसपास, ये तकरीबन कोई 500-600 साल पुराने हैं। जी जनाब, ये वो तारीख़ी जगह है जहाँ पे कन्फ्यूशियस अपने शागिर्दों को टीच किया करते थे, उनको तालीम दिया करते थे। और अभी भी अगर आप देख सकें तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स बैठे हैं और वो कन्फ्यूशियस की मुख्तलिफ जो किताबें हैं उनको पढ़ रहे हैं। अभी भी ये जो किताबें देखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, वो हैं जी कन्फ्यूशियस के मुख्तलिफ अक़वाल। जी जनाब, और ये है वो जगह जहाँ पे कन्फ्यूशियस का मुजस्समा रखा गया है। चीनी पूरे मुल्क से यहाँ पे आते हैं, कन्फ्यूशियस को याद करते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। इसके अलावा ये एक बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे लोग आते हैं और अपनी ख्वाहिशात लिख के तो यहाँ पे हैंग करके जाते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं। नि हाओ, प्लीज़, थैंक यू। इस चीज़ की हमारी इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी जनाब, हज़ारों लोगों की हज़ारों ख्वाहिशें और इसमें मेरी भी एक ऐड होने जा रही है।
जनाब, हम पहुंच चुके हैं अभी कन्फ्यूशियस म्यूज़ियम में और ये है इसका शानदार हॉल जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर जो चीज़ें हैं कदीम उनको डिस्प्ले किया गया है। आइए आपको लेके चलते हैं। और जनाब, इस म्यूज़ियम में रखा हुआ ये छोटा सा घोड़ा सबसे ज़्यादा कीमती है और इसे जेड से बनाया गया था। अच्छा, अब जेड है वो चाइनीज़ सकाफ़त में अच्छी शख्सियत की अलामत है और कन्फ्यूशियस भी अपनी जो तालीमात हैं अखलाकी तौर पे उसमें अच्छी शख्सियत को बड़ा अहम गर्दानते हैं। जी जनाब, आज हमने कन्फ्यूशियस टेंपल का दौरा किया, कन्फ्यूशियस म्यूज़ियम देखा और बहुत सारी चीज़ें सीखी और ख़ुसूसी तौर पे एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी चीनी माशरे पे और चीनी माशरे की खुशहाली पे कन्फ्यूशियस की जो समाजी तालीमात हैं उनका एक बड़ा असर बाकी है। एनीवेज़, अभी होने जा रहा है जनाब कल 10th निशान फोरम ऑन वर्ल्ड सिविलाइजेशन। हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, 10th निशान फोरम ऑन वर्ल्ड सिविलाइजेशंस के वेन्यू पर आज हम मौजूद हैं और आज का टॉपिक है जनाब ट्रेडिशनल कल्चर एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। हम देख सकते हैं कि तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक के हज़ारों शरका और मंदूबीन इस फोरम में शिरकत कर रहे हैं। आइए आपको कुछ इसका अहवाल बताते हैं। जी जनाब, 10th निशान फोरम ऑन वर्ल्ड सिविलाइजेशंस आज हमने अटेंड किया। आज के इस आलमी मंजरनामे में जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात हो रही है, चीन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव हमें नज़र आता है, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। इसके तनाजुर में कि हम पूरा अर्ज़ पर जितने भी ममालिक, जितने भी तहजीबें यहाँ पर रह रही हैं, इनका आपस में लड़ना झगड़ना, इनका क्लैश ज़रूरी नहीं है। हम एक दूसरे की तहजीब के साथ सीख सकते हैं, सीखने का अमल हो सकता है और एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है वो अमल में लाई जा सकती है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।